चलिए, तो ये हम लोग आ गए अब 26 to 30 हम लोग करने वाले हैं पैसेज के क्वेश्चंस। और पैसेज जो है आपके सामने है दोस्तों। पैसेज को करने का तरीका जिस तरीके से लास्ट के पेपर में किया वैसे ही हम लोग करने जा रहे हैं। 2 बार बिल्कुल अच्छे से इसको पढ़ेंगे, मेरे साथ साथ आप लोग भी पढ़ें, खुद से आप लोग इसको कोशिश करें इसको समझने की। और फिर थर्ड जब अटेम्प्ट होगा हमारा, उस अटेम्प्ट में मैं आप लोगों को पूरा पैसेज अच्छे से समझाऊंगा और फिर हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग करना। 2 बार रीडिंग करेंगे एक एक पैराग्राफ को, ठीक। एक बार स्लो और फिर थोड़ा सा फास्ट। चलिए, तो मैं स्लो शुरू कर देता हूं। किसकी बात हो रही है, देखो। द डिसीजन टू बेस्टो द 2016 गुड डिजाइन अवार्ड, Japan's most prestigious design honor, upon the autograph world map came as a surprise to many. Given that previous winners have been innovations like personal mobility chairs and robotic arms, people wondered what had impressed the judges about the design of the map. It turns out that this strange looking map is the most proportionate depiction of the प्लैनेट। चलिए, तो ये स्लो था, अब थोड़ा सा फास्ट पढ़ता हूं, आप लोग भी इसको समझें। देखो क्या बात हो रही। द डिसीजन टू बेस्टो द 2016 गुड डिजाइन अवार्ड, जापान्स मोस्ट प्रेस्टिजियस डिजाइन ऑनर, अपॉन द ऑटोग्राफ वर्ल्ड मैप came as a surprise to many. Given that previous winners have been innovations like personal mobility chairs and robotic arms, people wondered what had impressed the judges about the design of the map. It turns out that this strange looking map is the most proportionate depiction of our planet. Next पढ़ते हैं, देखो स्लो पढ़ेंगे। क्या है, द वर्ल्ड मैप एज वी नो इट uses the Mercator projection, a mapping technique developed in 1569 by cartographer Gerardus Mercator. Though excellent for navigation, the method significantly distorts the size and proportion of land masses and bodies of water. So while North America and Africa appear to be about the same size, in reality the former could fit inside Africa with rooms to spare for India, Argentina, Tunisia and much more. Similarly, though Brazil is more than 5 times larger than Alaska, it is the latter that appears bigger. The reason for the discrepancies has to do with the challenge of transporting the 3-dimensional spherical surface of Earth onto a 2-dimension flat map, a task that is surprisingly hard to do accurately. ठीक, अब थोड़ा सा हम लोग इसको फास्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। देखो क्या, आप भी ध्यान दें। द वर्ल्ड मैप एज वी नो इट यूजेस द Mercator projection, a mapping technique developed in 1569 by cartographer Gerardus Mercator. ठीक है, though excellent for navigation, the method significantly distorts the size and proportion of land masses and bodies of water.
So while North America and Africa appear to be about the same size, in reality the former could fit inside Africa with room to spare for India, Argentina, Tunisia and much more. Similarly, though Brazil is more than 5 times larger than Alaska, it is the latter that appears bigger. The reason for the discrepancies has to do with the challenge of transporting the three-dimensional spherical surface of Earth onto a two-dimensional flat map, a task that is surprisingly hard to do accurately. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं. देखो नेक्स्ट पैराग्राफ थोड़ा सा स्लो पढ़ेंगे. Over the years there have been numerous attempts to solve the issue. The Gauss-Peters projection tried by vertically compressing the region near the poles, while the Mollweed projection bent continents around the corner to portray them more accurately, though the box-eumorphic projection showed the correct shape and land mass size by slicing the globe into sections. The map was not practical for ocean navigation. The orthograph world map which beat out, अच्छा सॉरी वापस से अब इसको थोड़ा सा स्लो पढ़ते हैं. ठीक है, देखो सॉरी इसको अब मैंने एक बार स्लो पढ़ा, अब मैं वापस से इसको थोड़ा सा फास्ट पढ़ता हूँ. ठीक है. ओवर द इयर्स देयर हैव बीन न्यूमरस अटेम्प्ट्स टू सॉल्व द इशू. द Gauss-Peters projection tried by vertically compressing the region near the poles, while the Mollweed projection bent continents around the corner to portray them more accurately, though the eumorphic projection showed the correct shape and landmass size by slicing the globe into sections. The map was not practical for ocean navigation. चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं. देखो क्या लिखा है. द ऑर्थोग्राफ वर्ल्ड मैप which beat out 1000 entries in various categories appears to have solved the issues using geometry created by architect and designer Hajime Narukawa. ठीक है, ये नाम है Hajime Narukawa. It divides the globe into 96 equal triangles and projects them onto a tetrahedron shape. This simple technique preserves the proportions of the land and water when going from a three-dimensional sphere to a two-dimensional map. अब थोड़ा सा इस पैराग्राफ को फास्ट पढ़ेंगे. देखो, the orthograph world map which beats out 1000 entries in various categories appear to have solved the issue using geometry created by architect and designer Hajime Narukawa. It divides the globe into 96 equal triangles and projects them onto a tetrahedron shape. This simple technique preserves the proportions of the land and water when going from a three-dimensional sphere to a two-dimensional map. आगे देखते हैं. चलिए ये लास्ट पैरा एक बार पढ़ेंगे दो बार. The result is an accurate map that is unlike any other. Instead of lining up straight across, the continents curve upwards as though smiling at finally being represented accurately. It also appears as though Africa and the Americas have swapped places. As for those tidy longitudes and latitudes grids, they have been reduced to the mishmash of curvy and
ट्विस्टी लाइंस। ठीक, अब थोड़ा सा इसको एक बार फास्ट पढ़ते हैं। द रिजल्ट इज एन एक्यूरेट मैप दैट इज अनलाइक एनी अदर। इंस्टेड ऑफ लाइनिंग अप स्ट्रेट अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स कर्व्ड अपवर्ड as though smiling at finally being represented accurately, it also appears as though Africa and America have swapped places. As for those tidy longitudes and latitude grids, they have been reduced to a mismatch of curvy and twisty lines. तो चलिए ये हमने रीड किया 2 बार और कोशिश की कि इसको समझें कि ये क्या किसके बारे में है। देखो दोस्तों, इसको 2 बार रीड करने में इतना तो हमको आइडिया लग गया कि ये थोड़ा मैप वगैरह के बारे में है कि किस तरह से जो मैप्स हैं, एक पहले भी एक कंपटीशन हुई थी जिसमें एक कंपनी को जो है बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला था कि उसने जिस तरीके का जो मैप, वर्ल्ड का जो मैप है वो डिज़ाइन किया, उसके ऊपर ये डिस्कशन हुआ पूरा। उसके अलावा किस तरीके से ये जो पहले जो मैप हुआ था, हम लोग जो देखते थे वर्ल्ड के मैप, है ना, उसमें एक जिक्र किया हुआ है किसका, कि असल में जो है अमेरिका जो है वो अफ्रीका से काफ़ी छोटा है, लेकिन उसको कैसे प्रोजेक्ट किया जाता है, अगर हम मैप में देखें तो ऐसा लगता है जैसे कि अमेरिका और अफ्रीका दोनों की साइज बराबर है, पर असल में ऐसा नहीं है। अमेरिका पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका आप अफ्रीका के अंदर आ जाएगा और उसके बावजूद जो है बहुत सारे दूसरे देशों के लिए जगह उसमें बचेगी, इंडिया के लिए या फिर वो भी प्लेस हो जाए ऐसी जगह उसमें बचेगी। तो ये मैप के बारे में है, नक्शे के बारे में है। ठीक है, पूरा का पूरा आपका पैसेज है ना, एक हमको एक रफ आइडिया लग गया कि इसके अंदर है क्या, किसकी डिस्कशन हो रही, किसके बारे में बात हो रही है। ठीक है ना, अब हम लोग पूरा उसको समझेंगे वर्ड टू वर्ड। ठीक है, पूरा इसका डिटेल हम लोग समझने वाले हैं। तो देखो आप लोग, है ना, स्टार्टिंग से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखो यहाँ पे द डिसीजन टू बेस्टो द 2016 गुड डिजाइन अवार्ड, जापान्स मोस्ट प्रेस्टिजियस डिजाइन ऑनर अपॉन द ऑर्थोग्राफ वर्ल्ड मैप केम एज अ सरप्राइज टू मैनी। अच्छा, तो ये देखो यहाँ पे जो है ना, इस पैसेज की शुरुआत कहाँ से हो रही है। देखो ऐसा हर साल जो है जापान में एक अवार्ड रखा जाता है जिसको क्या नाम दिया है, गुड डिज़ाइन अवार्ड, जो कि जापान का बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है। और ये उन लोगों को या उन कंपनियों को या उन डिज़ाइंस को बेसिकली अवार्ड दिया जाता है जो सबसे अल्टीमेट हो, सबसे बेस्ट हो। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे किसकी बात हो रही, 2016 में जो है ये वाला जो अवार्ड है ये किसको प्राप्त हुआ था, ये प्राप्त हुआ था इस पर्टिकुलर मैप को, ऑर्थोग्राफ वर्ल्ड मैप, इसको ये अवार्ड मिला था, है ना, इस वर्ल्ड मैप को ये अवार्ड मिला था। और ये चीज जो है बहुत सारे लोगों को आश्चर्य लगा, है ना, सरप्राइज लगा कि क्योंकि लोगों को ज्यादा पता नहीं था कि ये जो ग्राफ है ये क्या है, इसमें क्या खासियत है वर्ल्ड मैप में, है ना, तो ये सब लोगों को सरप्राइज लगा। अब देखो, गिवन दैट प्रीवियस विनर्स हैव बीन इनोवेशंस like personal mobility chairs and robotic arms, people wondered what had impressed the judges about the design of the map. अच्छा, ये जो अवार्ड है पहले जो है ये जो अवार्ड है किस प्रकार के लोगों को या विनर्स को दिया जाता था, जो जनरली क्या होते थे, इनोवेशंस होते थे, कुछ नई चीज़ों का आविष्कार किया हो या कुछ इस तरह की जैसे पर्सनल मोबिलिटी चेयर्स वगैरह, ऑटोनोमस चेयर वगैरह, या कोई रोबोटिक चीज़ें, आर्म्स वगैरह, मतलब इस तरह की जो चीज़ें होती थी उनको ये अवार्ड्स दिया जाता था। किसी ने सोचा नहीं था कि एक मैप जो है उसको भी कोई अवार्ड मिल जाएगा। तो पीपल जो है ये इस चीज़ को बिल्कुल इमेजिन कर रहे थे, वंडर्ड कर रहे थे, और कि यार ऐसा क्या हुआ कि जजेस, है ना, मतलब ऐसा जब जजेस को ऐसा किस चीज ने जज को जो है इम्प्रेस कर लिया, है ना, इस डिजाइन में ऐसा क्या था कि जज ने जो है इसको, इस डिजाइन को, पर्टिकुलर डिजाइन को चूज किया, है ना। आगे क्या, इट टर्न्स आउट दैट दिस स्ट्रेंज लुकिंग मैप इज द मोस्ट प्रोपोर्शनेट डिपिक्शन ऑफ द प्लैनेट। और बाद में सबको पता चला, क्या पता चला कि ये जो स्ट्रेंज लुकिंग मैप, ये जो वो अजीब सा दिखने वाला जो मैप है, ये जो मैप है, कौन सा मैप है, ऑर्थोग्राफ वर्ल्ड मैप, जो अजीब सा दिखने वाला जो मैप है, ये सबसे मोस्ट प्रोपोर्शनेट डिपिक्शन है ऑफ द प्लैनेट अर्थ। मतलब एक्चुअल में जैसा हमारा अर्थ दिखता है,
प्लैनेट, उसका सबसे परफेक्ट डिपिक्शन जो है वो किस में देखने को मिला है? ऑर्थोग्राफ वर्ल्ड मैप में। ठीक है, इसका मतलब अभी जो मैप्स हम लोग देखते हैं उसमें एग्जैक्टली सच में जो जहां जिसकी जो प्लेसमेंट है लैंड की वो वैसा सच में नहीं है, लेकिन ये जो मैप है ये इस बढ़िया तरीके से बनाया, डिजाइन किया गया कि जैसा एक्चुअल में हमारा धरती है वैसा ही उसमें उसका डिपिक्शन इसके अंदर दिया हुआ है। इसके कारण इसको जो है ये इतना बड़ा जो है गुड डिजाइन प्रेस्टिजियस अवार्ड इसको प्राप्त हुआ 2016 के अंदर। ठीक है दोस्तों, अभी तक क्लियर हुआ? चलिए, तो हमको ये तो पता चल गया कि ये पूरा का पूरा हमारा जो पैसेज है ये किसके बारे में है? इस ऑर्थोग्राफ वर्ल्ड मैप के बारे में है, जिसको कि 2016 में गुड डिजाइन अवार्ड भी मिला हुआ है। ठीक है, और ये ग्राफ जो है एक तरह से सबसे ज्यादा मोस्ट प्रोपोर्शनेट डिपिक्शन बताता है हमारे प्लैनेट का। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन तो हमको किस में पता चल गई? फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर पता चल गई। अब आगे समझते हैं। ये जो वर्ल्ड मैप है ना, जैसे कि हम इसको, अच्छा अब ये पुरानी बात बता रहे हैं। ठीक है, द वर्ल्ड मैप एज वी नो इट यूजेस अ मर्केटर प्रोजेक्शन, अ मैपिंग टेक्निक डेवलप इन 1569 बाय कार्टोग्राफर गेरार्डस मार्केटर। अच्छा, तो ये जैसे कि हम लोग जानते हैं कि नॉर्मली जो वर्ल्ड मैप होते हैं, जनरली जो वर्ल्ड मैप होते हैं उनके अंदर एक ये यूज होता है क्या? मार्केटर प्रोजेक्शन। ये एक तरह से मैपिंग करने की एक टेक्नोलॉजी है, एक टेक्निक है। ठीक है, ये टेक्निक यूज होती है और ये जो टेक्निक है ये किसके द्वारा डेवलप की गई थी? एक कार्टोग्राफर जिनका नाम है गेरार्डस मार्केटर, इनके द्वारा ये टेक्निक विकसित की गई थी। कौन से ईयर में? 1569 में। ठीक है, तो कार्टोग्राफर कौन होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो मैप्स वगैरह बनाता है। ठीक है, एक वो होता है वन हु डेपिक्ट मैप, जो मैप वगैरह डिजाइन करता है, बनाता है, उसको बोलते हैं कार्टोग्राफर। तो ठीक है, ये नॉर्मली जो मैप होते हैं वो इस मार्केटर प्रोजेक्शन के हिसाब से बनाए जाते हैं, चलते हैं। ठीक है, दो एक्सीलेंट फॉर नेविगेशन, हालांकि ये सभी मैप्स की बात हो रही है, उस पर्टिकुलर ऑर्थोग्राफ जो मैप है उसकी बात नहीं हो रही है ना। दो एक्सीलेंट फॉर नेविगेशन, ये जो मैप्स हैं या फिर इस टेक्निक पर बने हुए जो मैप हैं वो नेविगेशन के लिए तो काफी अच्छे होते हैं, शिपिंग वगैरह के लिए तो काफी अच्छे होते हैं, है ना। ये जो मेथड है इन चीज में तो अच्छे से काम आ जाता है। मेथड सिग्निफिकेंटली डिस्टॉर्ट द साइज एंड प्रोपोर्शन ऑफ लैंड मासेस, लेकिन जो एक्चुअल साइज में जो ये लैंड मास होते हैं, जो कॉन्टिनेंट होते हैं, और जो मैप में जो बताए जाते हैं उसमें बहुत फर्क होता है। मतलब एक्चुअल में जितना बड़ा या जितना बड़ा होना चाहिए लैंड, मतलब उसको उस प्रोपोर्शन में भी नहीं बताया जाता है। मतलब जो कंट्री दूसरी कॉन्टिनेंट से छोटा है, जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया है कि अफ्रीका जो है बहुत बड़ा दिखता है किससे? अमेरिका से, लेकिन उसके बावजूद जो अमेरिका और अफ्रीका की साइज एक जैसी बताई गई। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम की इसमें बात हो रही है ना। तो देखो, तो मेथड सिग्निफिकेंटली जो है, एक तो साइज जो है प्रोपोर्शन ऑफ लैंड मास वो गड़बड़ बता रहा है, एंड बॉडीज ऑफ वाटर बॉडी जो है उनकी भी कितनी साइज है वो थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। सो वाइल देखो, ये देखो इसमें एक इससे आपको समझ में आएगा कि नॉर्थ अमेरिका जो है, वाइल नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका जो है वो मैप के ऊपर आप देखोगे तो वो सेम साइज की आपको नजर आएगी। ठीक है, लेकिन हकीकत में क्या होता है पता है कि ये फॉर्मर का मतलब पहले वाला, मतलब नॉर्थ अमेरिका जो है कुड फिट इनसाइड अफ्रीका। नॉर्थ अमेरिका इतना छोटा है कि पूरा का पूरा अफ्रीका के अंदर आ सकता है और उसके बाद भी कुछ जगह बचेगी, रूम टू स्पेयर फॉर इंडिया, और वो इतनी जगह बचेगी उसके बाद भी अफ्रीका में जिसमें इंडिया की जगह को भी रखो, अर्जेंटीना को रखो, ट्यूनीशिया और मच मोर, और मतलब बहुत सारी जगह बच जाएगी। इसका मतलब अफ्रीका जो है असल में नॉर्थ अमेरिका से साइज में बहुत बड़ा है, लेकिन मैप में ऐसा लगता है कि जैसे दोनों बराबर हैं। और देखो और क्या, सिमिलरली दो ब्राजील, देखो ब्राजील जो है, देखो आप 5 टाइम्स लार्जर देन अलास्का, अगर आप देखेंगे तो ब्राजील जो है वो अलास्का से 5 गुना बड़ा है। ठीक है ना, 5 गुना बड़ा है, लेकिन इट इज द लैटर मतलब ये अलास्का की बात हो रही है, दैट अपीयर्स बिगर, कि जब आप मैप में देखोगे तो आपको लगेगा कि अलास्का बहुत बड़ा है, अलास्का को बहुत बड़ा चढ़ा के बताया और ब्राजील को छोटा बताया, लेकिन असल में ब्राजील जो है वो अलास्का से बहुत 5 गुना बड़ा है। देखो आगे देखो, द रीजन फॉर
डिस्क्रिपेंसीज, डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है ये जो कमियां हैं, डिस्क्रिपेंसी है, ये जो कुछ कमियां हैं, ये क्या कारण है उसका? हैज टू डू विद चैलेंज, एक चैलेंज एक फेस करने का हो रहा, एक चैलेंज सामने आया इन लोगों के। क्या चैलेंज? ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द 3 डायमेंशनल, ये जो 3 डायमेंशनल स्पेरिकल जो सरफेस है उसको, अर्थ का, उसको आपको किसमें इसको आपको कुरेदना है या बनाना है किसमें? 2D में। तो ये 3 डायमेंशनल से 2 डायमेंशनल में करने में आपको ये इसके कारण ये प्रॉब्लम आ रहा है कि मैप जो है वो तो 2 डायमेंशनल होता है और असल में जो हमारा पूरा का पूरा जो ग्लोब है, हमारा जो अर्थ है वो 3D है, ठीक है, स्फीयर है, तो उसको 2 में कन्वर्ट करने हैं, उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। और ये एक ऐसा काम है जो कि बहुत ही मुश्किल है ना, एक्यूरेटली इसको बिल्कुल एग्जैक्ट शेप जो है जिस प्रोपोर्शन पे बताना वो बहुत ही कठिन काम है ना, इसलिए ये सारी प्रॉब्लम आई इसमें। पुराने जो मैप्स हैं या फिर ये जो हमारा जो मार्केटर प्रोजेक्शन का जो टेक्निक से जो हम मैप, जो हमारे नॉर्मली सारे मैप्स होते हैं उसमें ये सारी चीज़ें लगी है, लेकिन ये देखो अभी जो हम पढ़ रहे हैं इसमें ये परेशानी को इन्होंने दूर किया। आगे पढ़ते देखो, ओवर द ईयर्स मतलब आगे चल के, आगे के कुछ वर्षों में, देयर हैव बीन न्यूमरस अटेम्प्ट, कई कोशिशें हुई, ठीक है, टू सॉल्व द इशू, इस प्रॉब्लम को का हल निकालने की जो है कई आगे के सालों में बहुत सारी कोशिशें हुई। देखो क्या क्या हुआ। द गैल्स पीटर्स प्रोजेक्शन, एक मिस्टर गैल्स पीटर ने एक प्रोजेक्शन दिया था। इन्होंने क्या किया? ट्राइड बाय वर्टिकली, इन्होंने क्या किया? वर्टिकली मतलब ऊपर से नीचे, कंप्रेसिंग द रीजन नियर द पोल। इन्होंने क्या करा कि जो पोल्स के पास के जो रीजन्स थे, है ना, पोल्स के पास के जो रीजन्स थे उसको उन्होंने थोड़ा कंप्रेस कर दिया, मतलब एकदम ऐसे सिकुड़ दिया, ऐसे कंप्रेस कर दिया, है ना, ऐसे रीजन्स को कंप्रेस कर दिया पोल्स के पास में। और जबकि एक और प्रोजेक्शन आया था, कौन सा? मॉलवीड प्रोजेक्शन आया था। इन्होंने क्या करा? इन्होंने बेंड कर दिया, थोड़ा मोड़ दिया, ऐसे मोड़ दिया, कैसे? कॉन्टिनेंट्स को अराउंड द कॉर्नर, उनके कोनों पे थोड़ा इसको क्या कर दिया उन्होंने? ऐसे मोड़ दिया, टू पोर्ट्रे देम, उनको ऐसा दिखाने के लिए मोर एक्यूरेटली, ताकि वो हमको कैसा लगे? थोड़ा एक्यूरेट लगे, है ना। उस हिसाब से अलग अलग प्रोजेक्शंस ने अलग अलग तरीके से उसको थोड़ा शेप देने की कोशिश करी। आगे, दो द बॉक्स, अब एक और ये है बॉक्स यूमॉर्फिक प्रोजेक्शन। देखो 3 प्रोजेक्शन की इसमें बात हो गई, है ना। कौन कौन से प्रोजेक्शन? ध्यान देना, एक तो ये गैल्स पीटर्स का जो प्रोजेक्शन था, इन्होंने क्या करा? वर्टिकली पोल्स के पास थोड़ा सा उसको ऐसा कंप्रेस कर दिया, ठीक है, जगह को। फिर दूसरा प्रोजेक्शन किसका था? मॉलवीडे प्रोजेक्शन। इन्होंने क्या करा कि कॉन्टिनेंट्स को थोड़ा उनके कोने से ऐसे मोड़ दिया, है ना। और तीसरा जो है क्या था? बॉक्स यूमॉर्फिक प्रोजेक्शन जो है, इन्होंने क्या करा? इन्होंने, इनका जो प्रोजेक्शन अभी तक का सबसे एक्यूरेट रहा इसके आने के पहले, जो हम पढ़ रहे हैं उसके पहले, तो करेक्ट शेप में इन्होंने दिया, है ना, शोड द करेक्ट शेप एंड लैंड मास साइज वगैरह भी दिया। इन्होंने क्या करा? स्लाइस कर दिया इनटू सेक्शन, मतलब ग्लोब को जो है छोटे छोटे टुकड़ों में स्लाइस कर दिया, सेक्शंस बना दिए। मैप वाज नॉट प्रैक्टिकल फॉर, लेकिन ओशन नेविगेटर, जो जहाज वगैरह, जो समुद्री जहाज जो चलाते, उन लोगों के लिए वो मैप कोई फायदेमंद नहीं निकला, ठीक है। तो मतलब जितने भी मैप्स बनाए गए इससे पहले, जो जो कोशिशें की गई, वो उन्होंने अच्छी अटेम्प्ट की, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें कमियां रही, ठीक है, बहुत सारे मैप्स में कमियां रही। तो अब इसकी जो सॉल्यूशंस हैं वो किसने निकाला? इस पर्टिकुलर वर्ल्ड मैप ने। इसीलिए इसको इतना तवज्जो मिला, इसको 2016 में इसको डिजाइन का प्राइज मिला, ठीक है। क्या नाम है इसका? द ऑर्थोग्राफ वर्ल्ड मैप, ठीक है। इसने क्या किया? देखो, विच बीट 1000 एंट्रीज इन वेरियस कैटेगरीज, अलग अलग, ये जब देखो कोई डिजाइन की कॉम्पिटिशन्स होती है तो अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग वेराइटीज में वो सब पार्टिसिपेट करते हैं, और उसमें से इसने देखो 1000 अलग अलग एंट्रीज, 1000 एंट्रीज आई थी, सबको उसने बीट करके जीता, है ना। और ऐसा लग रहा है जैसे ये जो मैप है इसने पूरा जो प्रॉब्लम जो पुराने प्रोजेक्शंस से सॉल्व
नहीं हो पाया था। ऐसा लग रहा जैसे कि इसने, इस पर्टिकुलर मैप ने ये सारी की सारी जो दिक्कतें थी मैपिंग की, नेविगेशन की, वो सब सॉल्व करने की इसने कोशिश की। इशू यूजिंग ज्योमेट्री की हेल्प से इन्होंने किया। इन्होंने क्या किया, देखो किसने बनाया था ये, क्रिएटेड बाय आर्किटेक्ट एंड डिजाइनर। देखो ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो मैप है ऑटोग्राफ वर्ल्ड मैप, ये किसके द्वारा क्रिएट किया गया, ये किया गया हाजिम नारुकावा, ये जापान के हैं, इन्होंने ये मैप बनाया। ठीक है, किसने, ये एक आर्किटेक्ट भी है और एक डिजाइनर भी है, हाजिम नारुकावा। इन्होंने क्या करा, सबसे पहले तो ग्लोब को 96 इक्वल ट्राइंगल में बांटा। मैप को इन्होंने कितने ट्राइंगल में, ऐसे 96 इक्वल ट्राइंगल में बांटा इन्होंने, है ना, इस तरीके से 96 जो है इक्वल ट्राइंगल में इन्होंने बांटा। एंड इन्होंने प्रोजेक्ट्स देम ऑन टू अ टेट्राहाइड्रॉन शेप, एक टेट्राहाइड्रॉन का पूरा इन्होंने शेप दिया, है ना। टेट्राहाइड्रॉन मतलब ऐसा कोई, हाँ ये वाला शेप, हाँ ये इस तरीके का एक, हाँ ये वाला शेप टेट्राहाइड्रॉन जो है ना, उन्होंने एक शेप दिया, है ना, पूरा प्रिज्म जैसा। तो ऐसा 96 किया और उसमें टेट्राहाइड्रॉन शेप दिया। और ये जो सिंपल टेक्निक थी, प्रिजर्व्स द प्रोजेक्शंस ऑफ द लैंड एंड वाटर, और इससे क्या हुआ कि जो लैंड और वाटर, जमीन और पानी, उसका सही सही प्रोजेक्शन हमको देखने को मिला व्हेन गोइंग फ्रॉम अ 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर टू 2D। मतलब 3D से 2D भी अगर हम देखेंगे तो बहुत ही एक्यूरेसी के साथ जो है हमको जो सही लोकेशन है, सही साइज है, वो सब इसके मदद से हमको देखने को मिला। ठीक है, आगे देखो तो द रिजल्ट, अब इसका जो परिणाम हुआ, ये जो मैप है उससे जो पूरा निकल के आई, जो पूरी डिजाइन, वो एक तरह से क्या थी, वो अपने आप में कंप्लीट एक एक्यूरेट मैप के फॉर्म में हमको वो डिजाइन मिली। दैट इज अनलाइक एनी अदर, मतलब दूसरों से जो बिल्कुल नई और बिल्कुल अलग तरीके का जो है वो मैप हमको देखने को, कंप्लीट मैप मिला। इंस्टेड ऑफ लाइनिंग अप स्ट्रेट अक्रॉस, पहले क्या था कि स्ट्रेट लाइंस थी, है ना, जो आप एक ग्लोब देखते हो तो आप ऐसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो लाइंस है ना, वो आप देखते हो। ये जो मैप है ऑर्थोग्राफ आप देखेंगे, ये बिल्कुल अलग तरह का मैप है। ठीक है, इस तरह का जो अक्रॉस है, द कॉन्टिनेंट कर्व्ड अपवर्ड, कॉन्टिनेंट थोड़े से ऊपर की साइड कर्व है, घुमावदार, एज दो स्माइलिंग, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो एक दूसरे पे स्माइल करके फाइनली बोलते हैं कि यार चलो फाइनली किसी ने तो हमको जो है सही जगह पे, जहां हम हैं वहीं पे हमको मैप में प्लेस करा, है ना, इस तरह का लग रहा है। इट ऑल्सो अपीयर, ऐसा लग रहा है जैसे अफ्रीका और जो अमेरिकाज है हैव स्वेप्ड प्लेस, ऐसा भी लग रहा है जैसे कि अफ्रीका और अमेरिका दोनों ने अपनी अपनी जगह बदल ली हो। ऐसा लग रहा था जैसे कि अमेरिका नीचे आ गया, अफ्रीका ऊपर, है ना, ऐसा अपीयर हो रहा है। एज फॉर दोज टाइडी लॉन्गिट्यूड, और ये जो लॉन्गिट्यूड लाइन जो ग्रेड वगैरह थी, इनका क्या, दे हैव बीन रिड्यूसेस टू द मिसमैच ऑफ कर्वी एंड ट्विस्टी लाइन, ये बिल्कुल ऐसी कर्वी ट्विस्टी कुछ तो भी लाइंस के फॉर्म में बस उनको देखिए, मतलब उनका जो रोल है, उनका जो काम है वो बहुत ही कम हो गया, मतलब लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड जो लाइंस हैं उनका रोल खत्म हो गया। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। ये एक नए बिल्कुल नया जो मैप का जो डिजाइन है, कौन सा, द ऑर्थोग्राफ, आपको टाइम मिले तो आप गूगल पे इसको सर्च करना, द ऑर्थोग्राफ वर्ल्ड मैप, ये जो नया डिजाइन है पूरा इसके बारे में बात हो रही है। हाजिम नारुकावा जापान के जो इन्होंने बनाया, और इनको जो है इसको बेस्ट प्राइज मिला हुआ है 2016 में गुड डिजाइन अवार्ड का। इस डिजाइन को ऑर्थोग्राफ, है ना, ऑटोग्राफ से वर्ड याद रखो, ऑर्थोग्राफ वर्ल्ड मैप, इसको बेस्ट डिजाइन मिला है। और इसने एक्चुअल में जैसा हमारा ग्लोब दिखता है वैसा ही इन्होंने 3D को जो है बनाने की, पोर्ट्रे करने की कोशिश करी, और बहुत अच्छे से इसमें क्लैरिटी के साथ इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई है। तो पूरा का पूरा हमारा जो पैसेज है इस ऑर्थोग्राफ वर्ल्ड मैप के ऊपर है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, ये जो अंडरलाइन वर्ड है क्या, कार्टोग्राफर, इसका क्या मतलब है। तो कार्टोग्राफर मैंने बताया था एक ऐसा व्यक्ति जो मैप्स वगैरह बनाता है, ठीक है ना। तो ये देखो, जो मैप को स्टडी करता है और बनाता है, बिल्कुल यही होगा। ठीक है, डिजाइन ग्लोब वाला नहीं होगा, लुक इनटू ज्योमेट्रिकल बाउंड्रीज वाला नहीं होगा, रूट मैप भी नहीं होगा। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो स्टडी करता है और मैप्स वगैरह बनाता है। फिर आप देखें
हाईलाइटिंग फीचर्स क्या है, इसके जो मेन फीचर क्या है ऑर्थोग्राफ वर्ल्ड मैप के, देखो क्या क्या क्वालिटीज है, मेन फीचर क्या क्या है। एक तो इट सीम टू हैव सॉल्व्ड द इशू यूजिंग ज्योमेट्री ओनली, ऐसा लग रहा है जैसे ज्योमेट्री की मदद से भी इन्होंने एक इशू सॉल्व करा, पर ओनली आया मतलब केवल यही पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। आगे क्या, इट स्टूड फर्स्ट अमंग द 1000 एंट्रीज वेरियस कैटेगरी, बिल्कुल सही है, 1000 एंट्री आई थी उसमें, जो डिजाइन अवार्ड था उसमें से ये क्या आया था, प्रथम आया था, फर्स्ट आया था। इट डिवाइड्स द ग्लोब इनटू 96 इक्वल ट्राइंगल इसने डिवाइड किया था, और प्रोजेक्ट्स देम ऑनटू एक टेट्राहाइड्रॉन शेप दिया था, बिल्कुल सही है। इसका मतलब ऑल द अबोव, ये वाला जो है हमारा डी वाला सही हो जाएगा, ऑल सारी तीनों ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो, अकॉर्डिंग टू द पैसेज which of the following projection is not practical for sailing in the waters, भाई इनमें से कौन सा वाला, 3-4 प्रोजेक्शन अपन ने पढ़े थे, उसमें से कौन सा वाला जो है प्रैक्टिकली नहीं है, कहाँ पे, पानी में सेल करने के लिए, ठीक है। तो ये किसकी बात हो रही है, देखो, प्रैक्टिकल फॉर सेलिंग इन द वाटर, गैल्स पीटर प्रोजेक्शन, मॉल्वी-डे, मार्केटर, या फिर बॉक्स यूमॉर्फिक प्रोजेक्शन, देख लेते हैं, है ना। तो ये बॉक्स यूमॉर्फिक होगा, कहाँ गया हमारा बॉक्स यूमॉर्फिक, बॉक्स यूमॉर्फिक यहाँ आने वाला है, न्यूमेरिक देखो शॉर्ट करेक्शन ये रहा, देखो दो, हालांकि बॉक्स यूमॉर्फिक जो प्रोजेक्शन है उसने भी अच्छा शेप बताया और लैंडमास की साइज बराबर बताई, लेकिन उसको 2 सेक्शन में बांट दिया। द मैप वाज नॉट प्रैक्टिकल फॉर ओशन नेविगेशन, ओशन नेविगेशन में ये मैप जो है प्रैक्टिकल नहीं था, है ना। मतलब हमारा डी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा, बॉक्स यूमॉर्फिक प्रोजेक्शन। फिर आप देखें ये जो ऑर्थोग्राफ वर्ल्ड मैप जो है ये किसने डिजाइन किया था, तो ये हाजिम नारुकावा, हैजिमे जो भी इनका जो प्रोनाउंसिएशन है, हैजाइम हैजिमे नारुकावा, इन्होंने किया था, ठीक है, जापान के है ये। फिर आप देखें द गुड डिजाइन जो अवार्ड है इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ विच कंट्री, कौन से देश का है ये डिजाइन अवार्ड, ये अवार्ड किसने शुरू किया था, ये शुरुआत में ये बात हो रही है किसने, ये जापान का ब्रेन चाइल्ड है। हर वर्ष जो है देखो आप जापान में ये देखो, ये द डिसीजन टू बेस्टो ये अवार्ड जापान्स मोस्ट प्रेस्टिजियस डिजाइन ऑनर, जापान का जो सबसे प्रेस्टिजियस जो ऑनर है वो ये अवार्ड है, ठीक है। तो जापान ने ये अवार्ड, ये उसका ब्रेन चाइल्ड है, जापान हमारा राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन समझाने का तरीका आपको समझ में आया होगा और साथ में आपके जो कंसेप्ट्स है वो भी क्लियर होंगे। चलिए अगले पेपर के साथ फिर से मिलते हैं और एकदम बढ़िया तरीके से हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं।